गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेल, आई होप ऑल आर डूइंग गुड। और एक चीज़, आज का लेक्चर मिल गया था मॉर्निंग में सबको। मॉर्निंग में लेक्चर तो मिल गया होगा सबको, 8 AM पे पढ़ा था, ठीक है। और कल भी ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा, और कल भी हम लोगों का जो है 8 AM पे ये लेक्चर 4 पढ़ेगा। और कल एक लेक्चर 5 कल ही लेंगे, कल ही एक क्लास और लेनी है 8 बजे के बाद, चाहे 1 बजे ले लेंगे और या फिर शाम को 4 बजे ले लेंगे, 4 साढ़े 4 तक, ठीक है। और वो मैं दोनों अपना मैनेज करके हम क्लास कल ले लेंगे 2, ठीक है। और क्योंकि इसलिए 2 क्लासेस ले रहे हैं एक दिन में, आज थर्सडे हो गया है। हम लोगों का टारगेट ये था कि हम लोगों को 1 वीक के अंदर ही अपना बायोमोलिक्यूल्स ख़त्म कर देना है। संडे तक भी ख़त्म हो जाता है अपना बायोमोलिक्यूल्स तो वेल एंड गुड। मंडे को नेक्स्ट वीक से अपना जो है हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। बायोमोलिक्यूल्स में आज हम लोगों को पढ़ना है बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स पढ़ना है और प्रोटीन पढ़ना है। मेरा चैप्टर काफ़ी बड़ा है, क्या करूं। अब एक दिन में दो दो क्लास ले लेंगे तो हमारा शायद में भी हम लोगों का ख़त्म हो जाए बायोमोलिक्यूल्स। और किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर उसका सॉल्व कर दी जाएगी। कोई डाउट सेशन, कुछ डाउट्स रह गए हों, और रिवीजन क्लास होगी तो रिवीजन क्लास में जिन जिन लोगों का छूट गया हो वो अपना फिर से कवर कर सकते हैं। एक बार कोर्स ख़त्म हो जाए फिर रिवीजन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। वो चार्जिंग ख़त्म हो गई क्या पेन की? नहीं, ठीक है। चलो NCERT पढ़ लेते हैं कि पहले थोड़ा सा बता देते हैं। NCERT पढ़ लेते हैं, ठीक है। NCERT पढ़ लेंगे और एक्सप्लेनेशन वाला NCERT ही पढ़ लो तो काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। वेट, चलो बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स। There is one feature common to all those compounds found in the acid soluble pool. They have molecule weights ranging from 80 to around 8,000 daltons da, approximately. The acid insoluble fraction as only 4 types of organ compounds: protein, nucleic acid,
phosphosides, and lipids. These classes of compounds with the expression of the lipids having molecule weights in the range of 10,000 daltons and above. For this very reason, biomolecules, chemical compounds found in living organisms, are two types. One, those which have molecular weight less than 1000 dalton and are usually referred to as micromolecules or simple biomolecules, while those which are found in the acid insoluble fraction are called micromolecules, biomicromolecules. बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब, बायो मतलब होता है बायोलॉजी, बायो, और माइक्रो माइक्रो, एक मिनट मैं बताती हूँ, बायो माइक्रो का मतलब क्या होता है. बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, कल बताऊंगी, हाँ देख के बताऊंगी, ठीक है. The molecules in the insoluble fraction with the express of lipids of pollen grain substance. Then why do lipids whose molecules weight do not exceed 800 Da come under acid insoluble fraction by micromolecules fraction? Lipids are the indeed smaller molecule weight compounds and the present not only as such but also arranged into structure like cell membrane and other membranes. When we graded tissues, we are distributed the cell structure, cell membrane and other membranes are broken into pieces and from vessels which are not water soluble. Therefore, these membrane filaments in the form of vesicles get separated along with acid insoluble pool, and hence in the micromolecules fraction lipids are not strictly micromolecules. The acid soluble pool represents roughly cytoplasmic composition. The micromolecules from cytoplasm and organelles become the acid insoluble fraction. Together they are represents and the entire chemical composition of living tissues of organisms. In summary, if we represent in chemical composition of living tissues from absolute point of view and arrange them class-wise, we observe that water is the most abundant केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. टेबल 9.4 ये टेबल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ये टेबल वाटर कंपाउंड वाटर का जो परसेंटेज ऑफ सेलुलर मास होता है 70 to 90 होता है. प्रोटीन का होता है जो 10 से 15 होता है. कार्बन डाइऑक्साइड का 3 होता है. लिपिड्स 2, न्यूक्लिक एसिड 5.7, आयरन 1. ये बहुत ज़रूरी, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है नीट में टेबल से. परसेंटेज सेलुलर मास की परसेंटेज, वाटर का पूछ लेगा, प्रोटीन का पूछ लेगा, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, आयरन्स. अब आते हैं प्रोटीन में. पहले proteins are polymerics. There are nearly chain of amino acid. जो प्रोटीन होता है वो पॉलीपेप्टाइड्स इन लेयरिंग चेन होता है अमाइनो एसिड की, linked by the peptide bonds as shown in figure 9.3.
each protein is a polymembrane of amino acid, as there are 20 types of amino acid. Example: allelase, crystalline, proline, typholine, allelase, etc. Are protein is the heteropolymer and not homopolymer. Homopolymer as only one type of monomer repeating n number of times. These information about the amino acid content is the important as a later in your nutrition less you प्रोटीन देखो, हम लोग यूजुअली भी प्रोटीन डेली लाइफ में भी प्रोटीन बहुत यूज़ करते हैं. जो लोग जिम में जानते हैं वो लोग प्रोटीन ज़्यादा अपने अंदर गेन करते हैं, प्रोटीन का ज़्यादा यूज़ करते हैं. और जिम वाले लोगों को प्रोटीन का ज़्यादा यूज़ भी करना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा एक टाइम डे में 1 टाइम प्रोटीन लेना ही चाहिए. हर पर्सन को विल लर्न दैट द creatine amino acid are the essentially for the healthy and they have the supplement during how diet. Hence देखो डाइट आ गया, मैंने बताया ना. Hence dieting proteins are the surely essential amino acid. Therefore amino acid can be essential or non-essential. Essential and non-essential, the latter are those which how body can make while is the waiting. The essential amino acid through our diet, food, proteins carry many functions in living organisms. Some transport nutrition across cell membranes, some flat wait एक मिनट. Some flat organisms, some are hormones, some are enzymes. ये टेबल देख लो, ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोटीन फंक्शंस, collagens, intercellular ground substance, trypsin, enzymes, insular हार्मोन्स. इंसुलिन सबको पता है, जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं उनको भी इंसुलिन दी जाती है. इंसुलिन मतलब वो हमारे हार्मोन्स जो होते हैं उसको कवर करने की कोशिश करता है. इंसुलिन हार्मोन्स फंक्शन, हार्मोन्स को एंटीबायोटिक, फाइट इन्फेक्शन एजेंट्स, रिपीटिंग सेंसरी स्मेल, टेस्ट हार्मोन etc. GLUT in enables glucose transport into cells. etc. Collagen is the most abundant protein in animal world. The rib, ulysses, biophosphorylated carbohydrates, ये याद कर लीजिएगा, is the most abundant protein in whole the biosphere. कल बहुत छोटा सा लेक्चर हो गया था, आज थोड़ा बड़ा हो गया है. कोई बात नहीं, लेक्चर बड़ा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है. वेट, ओके. ये आपको कल मिलेगा 8 AM पे. बी रेडी फॉर टुमारो. कल 2 क्लासेस होंगी, ठीक है. टाइमली क्लास में देख लीजिएगा लेक्चर. ये हमारा लेक्चर नंबर होगा 4. ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 4. कभी पेन इतना अच्छा चलता है, देखो पेन कैसे चल रहा है अभी. वेट, ठीक है. ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा.
ठीक है। और इसके बाद जो ये हमारा है ये भी कल ही करेंगे। ओके बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।